ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಯಾದಂತಹ ಆನಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಹೇಬರವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಆನಂದರಾಜ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಬೋದು. ಅವರು ಬಂದು 132ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆಯೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ BJPಯನ್ನು ತುಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹತ್ರ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ಮತ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೀಮ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಕು, ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟಬದ್ಧರಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಕು, ಪಟ್ಟಭದ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತೊಲಗಬೇಕು, ಕಟ್ಟಬದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಆನಂದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದಿಗಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೊಂದು ಸೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳವರು ಒಂದು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಂಶಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಚೇರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪುಣ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ, ಅರಿವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರ್ಸೇನಾ ಆನಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಾಹೇಬರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ विश्वगुरु विश्व रत्न ज्ञानवंत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज इस देश के करोड़ों लोगों का पूरा ज़िंदगी बदल गया है और आज इस देश में जिस तरह की सरकार आई है वो बाबा साहब अम्बेडकर ना संविधान बदलना का बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। और देश में आपने देखा होगा कर्नाटक में भी कई बार यहाँ जातीय धार्मिक दंगे होते हैं। तो अगर राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राष्ट्र एक बड़ी ताकत से उभरना चाहता है तो पहले तो पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति, प्रेम, बंधुत्व ये ज़रूरी है। और आज इस देश में ये सभी का एक दफ़ा इन लोग ने आपस में वैर बना के लोगों में झगड़ा लगा के ये सब खत्म किया है। और इसके वजह से जिस घर आपस में झगड़ता है वो घर आगे नहीं जाता है। वैसे जिस देश में आपस में लोगों में झगड़े हो रहे हो वो देश कभी आगे नहीं जा सकता। आज कर्नाटक में वही हाल है। कर्नाटक में आपस में इतने झगड़े हैं, हिंदू मुस्लिम से लेके दलित और माइनॉरिटीज़ और बाकी क्रिश्चियंस
ये आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं, तो यहाँ सेक्युलर फोर्सेस की ज़रूरत है, जो सबको लेके जा सकता है, जो सबके बारे में सोच सकता है और जाति धर्म के राजनीति न करके लोगों का प्रोग्रेस, लोगों का विकास। आज देश में जो बेरोजगारी है, खास करके आज का बेंगलोर जैसे सिटी में भी इतने आईटी इंजीनियर्स और आईटी एजुकेशनिस्ट है, उनको जॉब नहीं मिल रहे। तो इसके लिए जो प्रोग्रेस करेगा, जो महंगाई के बारे में बात करेगा, महंगाई कम करेगा, जो बेरोजगार कम करेगा, ऐसे लोगों के साथ जाने की ज़रूरत है। और देश का संविधान बचाने के लिए, देश का डेमोक्रेसी बचाने के लिए हम लोग ने तय किया है कि रिपब्लिक सेना ये टाइम कर्नाटक में चेंज के वास्ते कांग्रेस को सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि ये देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, कभी बाबा साहब ने एक भाषण किया, उसमें ऐसे बताया कि आदमी कितना भी बड़ा हो, उसके लिए कोई अंधभक्त नहीं होना चाहिए, मीन्स ब्लाइंड फोल्डेड उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड फोल्डेड फॉलो करेंगे तो उससे देश की डेमोक्रेसी खतरे में आएगी। आज इस देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ एक आदमी के पीछे अंधभक्त जैसे पीछे जा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरी चीज़ है। बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे अंधभक्त नहीं चाहिए, मुझे जो विचार करने वाले, जो आपस में सही मायने में विचार करके अपना डिसीजन लेने वाले, ऐसे लोग चाहिए जो अपने बारे में विचार करेंगे, देश के बारे में विचार करेंगे। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा आने की ज़रूरत है। आज इस देश में जिस तरीके के हालात बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ कर्नाटक का इलेक्शन चालू है, कोई आज यहाँ बेरोजगारी मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा है, महंगाई के बारे में नहीं बात कर रहा है, प्रोग्रेस विकास के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो हम लोग बात क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा करे कि नहीं करे, फिर बजरंग दल को बंदिया लाए कि नहीं लाए, ये सब बातें इस टाइम जरूरी नहीं है। लोगों का विकास, लोगों का प्रगति होना, लोगों को सही मायने में कैसे उनका फ्यूचर बनाएंगे, इसके बारे में सोचने की बात है। तो इस विषय में हम सभी ने ये तय किया है कि देश में जिस तरीके की तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आज हम देख रहे हैं कि अंबानी और अडानी, कोविड में भी उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, यहाँ लोगों को खाने के लिए मारामारी थी, दवा नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो ये जो हो रहा है कि चंद लोगों की प्रॉपर्टी बहुत बढ़ रही है और गरीब होते जा रहा है, और आर्थिक जो विषमता है, आर्थिक डिस्पैरिटी है, वो काफ़ी बढ़ रही है। ये सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर का मॉडल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि देश में जैसे उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी दी, और वो नरेंद्र मोदी हो और नहीं तो कोलार के यहाँ रहने वाला कोई गरीब आदमी हो, सबको एक वोट, ऐसे पॉलिटिकल इक्वालिटी दी। वैसे ही सोशल इक्वालिटी, भले वो कोई भी जात धर्म का हो, उसको अपना प्रोग्रेस करने के लिए पूरा हक है। वैसे ही इकोनॉमिकल इक्वालिटी में सबकी प्रॉपर्टी में इतना बड़ा डिफरेंस होना नहीं चाहिए कि आज हम देख रहे हैं कि बीच में वो अडानी, वो 2 नंबर का ये हुआ था पूरे वर्ल्ड का एकदम रिचेस्ट मैन, और यहाँ लोगों को खाने के नहीं मिल रहा है। तो ये जो हो रहा है ये बहुत बुरा है। आज सरकार बोल रही है हम लोग फ्री में अनाज देते हैं, ऐसे सरकार का कहना है। एक्चुअली सरकार की भीख नहीं मांगती है, इनको फ्री में अनाज नहीं मिलता है, इनके हाथों को काम दो, इनको हाथों को काम दो, ये खुद कमा सकते हैं और खुद कमा के खा सकते हैं। इनके ऊपर किसी की मेहरबानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोग का विषय, बाबा साहब का ये सोच है, और इस विषय पे, इस सोच पे हम लोग को काम करना है। और इसीलिए हम लोग रिपब्लिक सेना की तरफ से इस विषय में हम लोग रिपब्लिक सेना, इधर हमारे जिग्नी शंकर है, हमारे ये
जिला अध्यक्ष कोलार के हमारे चिक नारायण जी है, हमारे डीएस के सी नगराजन है, ये सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के ऊपर देश चलता है। प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बाबा साहब के संविधान के वजह से बैठता है, मगर बाबा साहब के संविधान पे बैठता है, मगर बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलते। तो हम लोग को अभी यही कोशिश है, हम लोग सभी अभी दलित ये सभी इकट्ठा होना चाहते हैं। अभी यहाँ 10 संगठन हमारे इन्होंने शंकर ने इकट्ठा किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे सभी संगठन इकट्ठा है। अब बाबा साहब का एक भाषण है, भी बाबा साहब कहते हैं कि देश में कभी डेमोक्रेसी सही मायने में चलेगी तो इस देश में जो हैव नॉट्स है, उन्होंने वो इंग्लिश में भाषण है, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया हैव नॉट्स, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन वो हु आर हैव नॉट्स, जो सत्ता संपत्ति से अभी तक वंचित है, जिनको सत्ता संपत्ति का अभी तक अधिकार नहीं मिला, वो सभी लोग इकट्ठा आने चाहिए और उन्होंने इस देश में सत्ता अपने हाथ में लेके अपने लिए ये सरकार चलानी चाहिए। और ये हो नहीं रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं रिपब्लिक सेना की तरफ से ऐसे लोगों को इकट्ठा करके सही मायने में बाबा साहब के विचारों पे देश का आगे बढ़ना होगा, तो ही देश में गरीब गरीब नहीं रहेगा और ज़्यादा श्रीमंत नहीं रहेगा, इक्वालिटी आ जाएगी, आर्थिक इक्वालिटी आएगी। और यही हमारी कोशिश है। और इसीलिए आज इस देश में जिस तरीके की जातीय दंगे और जातीय और धर्म का वाद है, उसको कम करने के लिए धर्म का राजनीति में आना बहुत दुर्भाग्य है। बाबा साहब बोलते हैं कि जब भी राजनीति में धर्म आ जाएगा उसी दिन लोकशाही खत्म हो जाएगी। आज इस देश में यही कोशिश हो रही है। हम चाहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ देश में प्योरली सेक्युलर राजनीति हो, धर्मनिरपेक्ष राजनीति हो और हमारा धर्म हमारे घर में रहे। हम जब बाहर पढ़ते हैं, रास्ते पे आते हैं, तब हम सब भारतीय हैं, हम सब भाई हैं। इस तरीके का माहौल इस देश में होना चाहिए। और अगर ये माहौल होता है तो सही मायने में इस देश की तरक्की ये आज जो हो रही है उससे दुगनी हो जाएगी और देश महासत्ता बन सकता है। ये बाबा साहब का सोच है और यही सोच लेके हम लोग जा रहे हैं। और इसीलिए आज इस कर्नाटका इलेक्शन में हम लोग सेक्युलर फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ कर्नाटका में हम लोग ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सभी लोग जो अम्बेडकरवादी है वो सभी कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये हम लोग की आपको निवेदन है। धन्यवाद।